ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜੋ ਬਹਿਰਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਸਨ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੁਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੁਵਾ ਬੇਟੀਆਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਵੋਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ, ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ, ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ? ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਨ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਰਟ ਵੋਟਰ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਥ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਲਟਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਕੀਮਸ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੋਬਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋਬਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਸ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਦਾਂ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜੋ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਪੋਵਰਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ आई ਉਹਨੇ कुछ करप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ सुधार किया है? अभी जो 5 साल में बहुत करप्टेड जो है बहुत कम हुई है, करप्शन बहुत कम हुई है, बट अभी भी कुछ ऐसे सिस्टम्स है जहाँ पे करप्शन होती है। अगर हम जॉब्स को लेके देखें तो मैक्सिमम उनको ही मिलती है जिन्होंने आगे पैसे दी ही होती है। करप्शन तो हुई है बट इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, आगे उम्मीद है कि कम हो सके। आप किस मुद्दे पर वोट करोगे? मैं फ़िलहाल तो बीजेपी के साथ ही हूँ। मुझे लगता है कि वो इतना तो किया है उन्होंने स्वच्छ भारत वगैरह के रिलेटेड, और मुझे लगता है कि आगे वो कुछ करेंगे। डिजिटल टेक्निक जो है आपके देश में कितनी डेवलप लगी आपको कि हमारा देश डिजिटल इंडिया बन रहा है? क्या लगता है आपको, बढ़िया है? हाँ, ये काम तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है। जैसे डिजिटल जो एजुकेशन चाहिए लोगों को, मीन्स स्टूडेंट्स को, अच्छी है, मेरे हिसाब से अच्छा है ये।
लाखों रुपए पढ़ाई करने के लिए बच्चे लगाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत बड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं और उसके बाद उन बच्चों को सरकारें नौकरी नहीं देती। आप क्या मांग करना चाहेंगी जो आने वाली सरकारें होंगी, या किस मुद्दे पर उनको वोट देंगे? यही चाहेंगे कि जब जो जॉब्स होती हैं वो स्टूडेंट्स को मिले ज़्यादा से ज़्यादा तक। आप पढ़ लिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में पढ़ाई करने के बाद उसकी वैल्यू का फल, उसका जो फल है वो हमको मिलेगा क्या? पढ़ाई की बात करें इंडिया में तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ में एजुकेशन तो है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन होती है वो इंडिया में नहीं है। जितना बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट हो या छोटे से छोटा गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे मेन मोटिव किसी का पढ़ाना नहीं होता, अच्छी एजुकेशन देना नहीं होता। उनका मोटिव होता है बस काम है, करो और ख़त्म करो। बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, उन्हें डेवलप करेंगे फिज़िकली, मेंटली, सोशली, हर एक वे में डेवलप करेंगे, तो वो कल को स्किल्ड होंगे। खुद स्किल्ड होंगे तो उन्हें जॉब्स करने के लिए ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक बात हम जॉब्स की करते हैं तो जॉब्स देना उन्हें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अगर एजुकेशन है वो कल को इसी उम्मीद पे पढ़ते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधार पाएंगे, कुछ कमा पाएंगे। तो ये एक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी बनती है और हमारे देश की जनता की भी, कि वो इस चीज़ को साथ में लेके चले और देश को आगे बढ़ाएं। बेटे, आप वेल एजुकेटेड, देखिए हमारे देश में एक प्रथा है कि जब किसी की बात सुनी नहीं जाती तो सड़कों पर आकर सड़क जाम कर देते हैं, पहिया जाम कर देते हैं। जैसे कि एक अन्नदाता है हमारे देश का, किसान जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर देश निर्भर होता है, वो काम करते हैं और हम लोग उसको खाते हैं। उनका हक उनको नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि आप सरकार से मांग करेंगे कि जो हमारे देश का अन्नदाता है, हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, उनका हक उनको मिलना चाहिए, ताकि सभी लोग जो हैं, जो अन्न खाते हैं या भोजन के रूप में अनाज को प्रयोग करते हैं, उनको परेशानी ना और किसान को उसका हक मिले? हाँ जी, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार ने क्या क्या काम किए, कुछ लगता है? देखा जाए बीजेपी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने करप्शन हटाने की भी कोशिश की, स्वच्छ भारत किया है उन्होंने, और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो है उन्होंने की है। कितने सारे स्कीम्स निकाले उन्हें, उज्ज्वला योजना के तहत शौचालय बनवाए हैं उन्होंने। और उनके आने के बाद जो हमारी इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी ऊंचाई तक गई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जो जिनकी सरकार आ रही है या जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो पूरा करें। ये ना बोले कि हम किसान को सत्ता में आते हैं तो कर्ज माफ़ कर देंगे या हम नौकरी दे देंगे, या जैसे बीजेपी की सरकार पहले अपने वादों में उन्होंने ये बोला था कि हम औरतों को आरक्षण देंगे। कुछ काम जो थे उन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। तो वो चीज़ अगर वो जीते तो वो चीज़ को पहले काम करे, उस चीज़ पर काम सही से करे। या अगर कांग्रेस आती है तो वो अपना काम करे। जैसे कि राहुल गांधी ने बहुत सारे वादे किए हैं कि हम किसान के कर्ज माफ़ करेंगे, हम लोगों को 72,000 रुपये देंगे। ये चीज़ें जो उन्होंने की हैं, अगर वो आए तो उसे पूरा भी करे, तभी लोगों को कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिशियंस पे यकीन होगा। यही कारण है कि यंगस्टर्स जो है इतना बिलीव नहीं कर रहे हैं। 15-15 लाख रुपए खाते में आने के लिए मोदी साहब ने बात कही थी। क्या बेटा लगता है आपको कि पिछले 5 सालों में किसी के खाते में 15-15 लाख आया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से तो डिमोनेटाइजेशन करी थी, पर हाँ माना कि काला धन कम हुआ है। पर जैसे उन्होंने कहा था कि काला धन कम होने की वजह से 15-15 लाख रुपए हर गरीबों को मिलेगा, पर मेरे को नहीं लगता कि शायद किसी को भी मिला है। तो उन्होंने जैसे बोला था उस हिसाब से वैसे कुछ हुआ नहीं है। आप किसको वोट करोगे फिर? मैं अगर करना चाहूँ वोट तो वैसे तो कांग्रेस को करूँगी। बीजेपी ने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ करा है, पर यहाँ पे मतलब उनका ज़्यादा मोटिव था कि गुजरात साइड या दिल्ली साइड उस तरफ को उन्होंने डेवलप करा। अगर हमारे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है। आपके मुताबिक पंजाब के साथ पक्षपात किया है, ये कहना है आपका? जी। आप किसको वोट करोगे? स्मार्ट वोटर हो, आपकी सिटी स्मार्ट हो, तो इस सिटी को, शहर को सुंदर बनाने के लिए, फगवाड़ा को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी सरकार से योजनाएं आप मांग रहे हैं जिसके द्वारा हमारा शहर सुंदर हो और विकास हो?
ऑब्वियसली मैं कांग्रेस को ही वोट देना चाहूँगी, बिकॉज अगर हमने पिछले 5 साल अगर हमने बीजेपी को दिया है, तो अब राहुल गांधी नहीं आए हैं, हमें अब उनको भी मतलब देना चाहिए मौका 5 साल। अब जैसे उन्होंने दिल्ली और बाकी गुजरात साइड में उन्होंने ज़्यादा मतलब किया है, डेवलपमेंट की है, वहाँ ज़्यादा सफाई योजना उन्होंने किया है। बट मुझे लगता है कि हमारा जैसे फगवाड़ा वहाँ थोड़ा सा पीछे रह चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि हम राहुल गांधी को भी वोट दें, देन वो 5 साल हम देखना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं। आप खूब पढ़ रहे हैं, पैसा भी खूब खर्च कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको आने वाला जो भविष्य है सरकारी अदारे में सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है? नो, नहीं मिल सकती। फिर इतनी पढ़ाई करके क्या करोगे? पेरेंट्स कह रहे हैं कि पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आपको उम्मीद नहीं है नौकरी मिलने की? बेटे आपको? सर अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगी, अगर हम अच्छे मार्क्स लगाएंगे। वैसे करप्शन तो बहुत है, बट अगर हम मेहनत करेंगे तो मिल भी सकती है। मतलब पॉजिटिव रखेंगे, पढ़ेंगे तो ऐसे थोड़ी हाथ में हाथ धरकर बैठ जाएंगे। किसको वोट दे रहे हो? बीजेपी को। और आपको आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि देखो माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके जो है हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर हमें प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार की नौकरी मिलती है और कितनी टेंशन में नौकरी करनी पड़ती है। तो आप किसको वोट करना चाहती हैं? बीजेपी। आप किसको? मैं तो कांग्रेस को करूँगी। कांग्रेस को वोट करोगे? क्यों करोगे? कांग्रेस ने भी बहुत बढ़िया काम किए हैं, अगर हम देखें तो मतलब पहले वो ही थी सरकार चलती आ रही थी, तब भी बहुत अच्छा था, मगर जब से मोदी जी आए हैं बहुत दंगे फसाद भी देखने को मिले हैं। और जैसे कि बॉर्डर पर कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, जवान कितने शहीद हुए हैं, मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। कांग्रेस की ज़रूरी तो नहीं कि कांग्रेस ही मतलब इतनी बुरी है, वो अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो उन्हीं को करूँगी। अच्छा, आप किसको वोट करने चाह रहे हो आने वाली 19 तारीख को? कांग्रेस को, बिकॉज हमने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो हमें लगता है कि हमारे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमारी पिछली वाली स्कॉलरशिप हमें मिली नहीं है, तो हमें आस है कि शायद हमारी स्कॉलरशिप्स हमें मिल